हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज जो चल रहा है हम लोग का। उसमें हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। ठीक है ना। 11th क्लास के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये जान सकें कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं हर किसी का कुछ ना कुछ जगह, जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं उसका भी उद्देश्य है, उसी तरह बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है। ठीक है ना। तो हम लोग ये समझेंगे कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है। ठीक है, बिजनेस में क्या रिस्क है। ये सब दो दो टॉपिक टॉपिक बचा हुआ है, बाकी बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। होप कि आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। बाकी बात रहेगा क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर पूरा बिजनेस स्टडी का फिर मैराथन लाएंगे। इसकी सिलसिला आपका चलते रहेगा। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, 90% स्कोर मार्क कीजिए, और आपको कोई तरह का अगर क्वेरी आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिसको कि हम इंडिविजुअली देख के उसमें अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा तो उसमें हम आपको उस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी और आपका रहा कि सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री क्लासेस है। सबको सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जितना भी स्टूडेंट है सबको इसका बेनिफिट लेके एक दूसरे को कोऑपरेशन कीजिए, है ना। तो हम लोग चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। एवरी बिजनेसमैन इज डायरेक्टेड टू the achieve of the certain objective. Objective refers to the all that the businesses people want to get the return for what they do. It is generally believed that business activities is carried out only for the profit. Business persons themselves proclaim that their primary objective is produce or distribute goods or services for the profit. Every business is said to be an attempt on the part of business people to get more than what has been spent or is invested, or in the other word to earn profit, which is excess of revenue over the cost. How it is being increasingly realized nowadays that the business enterprises are the part of the societies and need to fulfill several objectives, including social responsibility, to survive and prospect prosper in the long run. Profit is found to be leading objective, but not the only one. Although earning profit cannot be the only object of the business, its importance cannot be ignorance. Every business is an attempt to reap more than what has been invested, and profit it is excess of revenue over the cost. Profit may be referred as an essentials object of the business for various reasons. प्रॉफिट क्यों जरूरी है ये सब चीज आगे भी दिया हुआ। नंबर वन, इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस पर्सन। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग expense requirement of the business. It is indicate indicate that efficient working of business. It can be taken as society approval of the utility of the businesses, and it's build the reputation of the business enterprises. However, too much emphasis on the profit too exclusive of the other objective can be dangerous for the good businesses. ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द प्रॉफिट्स। बिजनेस मैनेजर में neglect all the other responsibility toward the customers, employee, investors, and the society at the large. They may they may even be inclined to exploit various sections of the society to earn immediate profit. This may result in non-cooperations or
even oppositions from the affected peoples against the malpractices of the business enterprises. The enterprises might lose its businesses and may be unable to earn profit. That is the reason why there is hardly only sizable business enterprises who only objective to maximize the profit. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इसको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेसेस दिया गया हुआ है। फिर हम लोग उस पॉइंट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी बिजनेस का क्या होता है कि व्यवसाय का उद्देश्य होता है। हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बोलते इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि व्यवसाय किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया जाता है। प्रत्येक बिजनेस का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जैसे लाभ कमाना, ग्राहकों को संतुष्ट करना, बाजार में प्रतिष्ठा बनाना, मतलब इत्यादि। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, पूरा करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। इसका जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है, इसका क्या होता है कि जो इस बुक में बताया गया है कि प्रत्येक बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कार्य करता है। प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, आय होता है, रेवेन्यू और लागत का अंतर होता है। मतलब अगर प्रॉफिट का आप वर्किंग करने जाएंगे तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जितना भी पैसा आप कमाए माइनस जितना आपका खर्चा किए, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। यदि बिजनेस को आपको लगातार चलाना है तो उचित लाभ की आवश्यकता होती है। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का बिजनेस को क्या करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप कोई भी बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो एक रीजनेबल मार्जिन के साथ में आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तो ही वो बिजनेस आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बिजनेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्यों जरूरी होता है, जैसे बताया गया। नंबर एक क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक आय का स्रोत बनता है। आय का क्या बनता है, स्रोत बन जाता है। प्रॉफिट क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन होता है उसका क्या होता है, आय का स्रोत होता है। और इफिशिएंट वर्किंग इंडिकेटर, मतलब प्रॉफिट यह बताता है कि बिजनेस सही तरीका से चल रहा है। अगर आप जब जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बिजनेस लगातार लॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो इफिशिएंट वर्कर है वो सही से काम नहीं कर रहा है। रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ, मतलब आपको अकाउंट्स बता देगा कि क्यों लॉस हो रहा है। अगर कंटिन्यू प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सारा सारा फैक्टर सही डायरेक्शन में कर रहा है। तीसरा क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर लाभ से क्या होता है, बिजनेस का विस्तार होता है। मतलब आज के डेट में आप देख रहे हो कि एक कंपनी क्या होता है, मल्टीपल जगह अपना बिजनेस खोल रहा है। कैसे, क्योंकि वो एक जगह से प्रॉफिट कर रहा है, दूसरे जगह वो उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रहा है। उससे क्या होता है कि बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। और अगला पॉइंट क्या होता है कि रेपुटेशन बिल्डिंग होता है। मतलब अगर आपका अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा बिजनेस होता है, जैसे आज के डेट में आप क्या बोल सकते हैं, टाटा का जो रेपुटेशन है वो क्या है, आंख आंख बंद के कोई भी प्रोडक्ट आप उसका उठा लीजिए तो आप भरोसे से ले सकते हैं कि उसका क्वालिटी सही होगा, प्राइस रीजनेबल रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक रेपुटेशन बन जाता है। इसीलिए ये जो बताया गया है कि हम लोग ये नहीं है कि केवल प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने क्यों जरूरत है, इसके बारे में हम लोग सारा पॉइंट को कवर किए, ठीक है ना। तो आगे आगे जो नेक्स्ट चीज है वो हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेसेस, ठीक है ना। बिजनेस का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोलता है कि ऑब्जेक्टिव आर नीडेड, बोलता है कि इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल and prosperity of the business. Since a business has to balance a number of needs and goals, it require multiple objects. It cannot follow only one objective and indicate and aspect to achieve excellency. Object objective has to be specific in every area and sphere of businesses. For example, sales target have to be set, the amount of capital to be raised has to be estimated, and the target number of the unit to be produced need to be defined. The object defined in the concern uh, in in concrete term what the businesses is going to
do. Object also enable the businesses to analyze their own performance and take steps as necessary to improve their performance in futures. Objectives are needed where in every area where performance and result affected survival and prosperity of the business. Some of these area are described as follow. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेन क्या होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस क्या होता है, मतलब बिजनेस का जो उद्देश्य होता है, वो केवल उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस बिजनेस को सफल केवल एक उद्देश्य है, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हर बिजनेस का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि बिजनेस सफल हो सके, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता होती है। नंबर एक क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को संतुष्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट का जितना आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं उसका उसका आपको उतना बेनिफिट मिले। नया नया इनोवेशन करें, अगर कोई न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, आप हेडफोन यूज करते थे तार वाला, लेकिन अब क्या आ गया, ब्लूटूथ वाला। तो वो क्या करता है, हर कंपनी उसको यूज कर रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज का सही उपयोग करें, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम लोग मिसयूज करें। ये सभी जो कार्य होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपना कितना कितना हम लोग को क्या बोलते हैं, कितना कैपिटल रेज करना है, कितना हमको सेल्स टारगेट करना है, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करना, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मल्टीपल। एक बिजनेस का क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, मार्केटिंग। Marketing stand refers to the positions of an enterprises it relating it relations to its competitor. A business enterprises must aim to stand a strong footing in term of offering competitive product बोलता है कि to its customers and serving them to their satisfactions। मतलब मार्केट स्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है कि मार्केट में बिजनेस का पोजीशन और रेपुटेशन। आप देखते होंगे जैसे कि अभी अब एग्जांपल के लिए हम लोग टाटा पर चलते हैं, ठीक है ना। टाटा का क्या होता है कि मार्केट का जो क्या होता है कि बिजनेस में पोजीशन और रेपुटेशन दोनों ही अच्छा है, ठीक है ना। हर इंटरप्राइज चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा माना जाए, कस्टमर उस पर विश्वास करे और क्या होता है कि कंपटीटर से मजबूत स्थिति में बने रहे। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि सीधा का सीधा बात आप देखते हो कि आप आपके आस-पास में कोई दुकान होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होता है, प्राइस लो रखता है, ठीक है। कस्टमर को क्या होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने से उसको अच्छा संतुष्टि मिलता है, कस्टमर को उस पर विश्वास है और क्या होता है कंपटीशन में वो क्या होता है कि औरों से अच्छा है। इसकी को बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग हम लोग, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग इनोवेशंस। उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, इनोवेशन करना। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइडिया और मेथड इन ए वे समटाइम sometime is done or made। There are the two kinds of the innovation in every business, innovations in product or services and second होता है innovations in the various skills and activities needs to the supply product and services। No business enterprises can flourish it in competitive world without innovations। Therefore innovations became an important object, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब होता है कि नवाचार, मतलब कि नया नया विचार, नया नया खोज करना, ठीक है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि नवाचार करना, ठीक है। मतलब कि नया नया आइडिया का खोज करना, नया नया सर्विसेज का, प्रोडक्ट का, ठीक है, नया स्किल का डेवलप करना, ठीक है। इनोवेशन का अर्थ होता है कि न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को नया आइडिया से, नया टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है, नया प्रोडक्ट, नया टेक्निक का उपयोग करना, ठीक है ना। इनोवेशन बिजनेस की ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है। यदि बिजनेस इनोवेशन नहीं करेगा तो वो कंपटीशन से पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इनोवेशन दो तरह का होता है। एक प्रोडक्ट इनोवेशन, मतलब नया नया प्रोडक्ट बनाना। जैसे आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि अब एक मार्केट में आपका कितना नया नया प्रोडक्ट आ गया जिसको कि आप आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं जानते थे, ठीक है ना। जैसे मोबाइल बना, तो मोबाइल बनने पर क्या हो गया था, हेडफोन बना, हेडफोन बनने जैसे जैसे नेसेसिटी बन रहा है उसका क्या क्या नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहा है, ठीक है ना। पहले वायर वाला आया, फिर क्या आ गया, ब्लूटूथ वाला आ गया, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल द न्यू मोबाइल मॉडल।
हर बार क्या होता है कि कभी एप्पल आ रहा है, एप्पल का नया-नया वर्ज़न आ रहा है, वीवो का आ रहा है, सैमसंग का आ रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्यों अपडेट कर रहा है? ये न्यू-न्यू इनोवेशन है। इसमें क्या होता है कि न्यू आइडिया है, न्यू टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो उसमें रैम कम होगा, इसमें रैम ज़्यादा होगा, इसका कैमरा अच्छा होगा, इसमें क्या नया-नया मेथड रहता है। ये सब चीज़ के कारण इसको एडॉप्ट करना, नहीं तो अगर आप देखते होंगे कि आपको आपको याद होगा नोकिया का मोबाइल के बारे में आप लोग को शायद याद है या नहीं है। आप जब बच्चे थे तो नोकिया का मोबाइल क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाया था। उसका न्यू आइडिया आया था, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाया, नया प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया, न्यू मेथड अडॉप्ट नहीं किया, उसके कारण क्या हो गया, नोकिया का मोबाइल पीछे चला गया और सैमसंग आगे निकल गया। इसलिए आपको मार्केट में बने रहने के लिए अभी आप सबसे आपका करंट एग्जांपल है नोकिया फ़ोन का, ठीक है ना? इससे आप समझ सकते हैं कि नोकिया मोबाइल पहले जब स्टार्टिंग हुआ था फ़ोन तो बहुत अधिक चल रहा था, ठीक है ना? सेकंड होता है कि सेकंड होता है प्रोडक्ट इनोवेशंस, ठीक है? प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब कि नई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी अपनाना, मतलब अगर पहले कीपैड था तो अभी सारा सारा कंपनी अब स्क्रीन टच मोबाइल बना रहा है, तो आपको भी स्क्रीन टच मोबाइल में आपको आना पड़ेगा। ये क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस मतलब क्या, नई सर्विस प्रदान करना। अगर बहुत लोग जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा कंपनियां अपना एक अलग अलग सर्विस आपको दे रही है, तो आपको आपको भी आपको मार्केट में कंपटीशन करना है। जैसा कि अभी आप यूट्यूब की दुनिया में देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर क्या होता है कि अभी यूट्यूब पे क्या कर रहा है, अपना कोचिंग चला रहा है, लेकिन यूट्यूब पे अपना एक डेमो डेमो वीडियो डाल दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका प्रमोशन मिल रहा है, तो ऐसा कर रहा है। अगर वैसा अगर उस सर्विस अगर एक टीचर दे रहा है तो सारा टीचर भी ऐसा दे रहा है, लेकिन आपको इस चैनल पे पूरा बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो आप उधर क्यों जाएंगे? इसलिए आपको हमको लग रहा है ना कि आपको टेक्नोलॉजी जो सर्विस आपको एक दे रहा है, आपको उस सर्विस की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको उस नया-नया सर्विस अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर दूसरा आपको उसमें फेल कर जा रहा है, तो आपको क्या हो रहा है ना कि उस सर्विस वो क्या हो रहा है, कहीं न कहीं मार्केट से पीछे हट जा रहा है। तो एक सफल बिज़नेस के लिए क्या होता है कि ये एक इम्पोर्टेंट ऑफ द इनोवेशन क्या होता है कि बेटर क्वालिटी होता है, लो कॉस्ट होता है, मतलब आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा, लो कॉस्ट मिलेगा, इंक्रीजिंग सेल्स मिलेगा और कस्टमर अट्रैक्शन मिलेगा। जैसे अभी हमने यूट्यूब चैनल चालू किया, ठीक है? बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि केवल एक सर्विस आपको दे रहा है, 1 क्लास डेमो दे दिया, 2 क्लास डेमो दे दिया आपको, फिर आपने से फीस लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको लो कॉस्ट, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटर क्वालिटी आपको, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप और कहीं क्लास कर रहे हैं, आप इस क्लास को रेफरेंस के तौर पे देखिए कि आपको इसमें इसमें जितना आपका आइडिया का क्लैरिटी मिलेगा, शायद आपके क्लास में उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा। ये क्या है, लो कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में केवल आप यूट्यूब का डाटा से, अब आप देख यूट्यूब में आप डाटा को ऑन कीजिएगा, आप देख सकते हैं, ऐसे भी आपका डाटा बर्बाद हो सकता है। क्या इंक्रीज इन सेल्स, इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग क्या करेगा, इस वीडियो को देखेगा, अधिक वीडियो को देखेगा तो क्या होगा, अधिक लोग को इससे बेनिफिट मिलेगा। और क्या होगा कि कस्टमर अट्रैक्शन, मतलब जितना बच्चा लोग यूट्यूब को देखेगा उससे क्या होगा कि और अधिक लोग का बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है, मतलब ये आपको एक सर्विस का एग्जाम्पल हम आपको इसमें दिए हैं, ठीक है ना? तो ये एक तीसरा प्रोडक्ट क्या है, तीसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बोलता है कि इज एन एसर्ट इन एसर्टनिंग द कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। इट इज यूज एन मेजर ऑफ एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइविंग कंटिन्यूअस सर्वाइवल बोलते एंड प्रोग्रेस। एवरी इंटरप्राइजेज मस्ट एम at greatest productivity through the best use of available resources। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है कि कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक उत्पाद करना, ठीक है ना? यह इफिशियंसी को मानता है, ठीक है ना? इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी का क्या होता है, आउटपुट बाय प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक मोबाइल फोन बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा स्पेयर पार्ट को ला के किसी को मतलब लगा रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि बर्बादी, मतलब ज़्यादा बर्बाद होता है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि मिनिमम संसाधन, मतलब अगर उसमें एक स्क्रू ड्राइवर लगना, मतलब अगर एक स्क्रू लगना है तो एक स्क्रू लगेगा, अगर एक मतलब स्क्रीन लगेगा तो एक स्क्रीन। ऐसा नहीं है कि एक मोबाइल बनाया मैंने 3 को स्क्रीन लगा दी, 2 को स्क्रीन टूट गया। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता, ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वेस्टेज जिसको बोल सकते हैं, वेस्टेज को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है कि कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करना, ठीक है ना? मतलब आपको जितना कम वेस्टेज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि आउटपुट बाय इनपुट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, हाई प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना? कॉस्ट को रिडक्शन कब होगा, जब प्रोडक्शन आपका हाई होगा, ऑटोमेटिक कॉस्टिंग आपका लो हो जाएगा। बेटर एफिशिएंसी करेंगे और आपका क्या प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एनी बिजनेस रिक्वायर
Physical resources like plants, machine, office, etc., and financial resource like the funds to be able to produce or supply of the goods and services to its customer. The business enterprises must aim to acquire these resources according to their requirement and the use then the efficiency. ठीक है ना? क्या है फिजिकल्स एंड फिनांस? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं बताइए? फिजिकल्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि बिजनेस को फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको क्या होगा, लैंड का जरूरत पड़ेगा। वहां पे क्या करेंगे, प्लांट सेटअप करेंगे। फाइनेंशियल रिक्वायर का रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पैसा का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पैसा भी लगता है, ठीक है ना? तो पैसा देना पड़ेगा, मतलब पैसा का भी यूज व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बिजनेस को फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों की आवश्यकता होती है। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जिसको आप देख मतलब मशीन बोल सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, इस सब को हम लोग बोलते हैं, ये सभी चीज़ों को फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है, कैपिटल आता है, कैश आता है, लोन आता है। मतलब बिजनेस का उद्देश्य इन रिसोर्सेज का सही उपयोग करना। मान लीजिए आपके पास मशीन है एक मशीन को आप सही ढंग से यूज ना करके दूसरा मशीन को ले आ रहे हैं, उससे क्या रहा है, आपका कॉस्टिंग बढ़ रहा है। एक लैंड को आपका क्या होना चाहिए, जब प्रोडक्शन प्लांट होना चाहिए वो हमेशा रूरल एरिया में होना चाहिए, मतलब गाँव में होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, प्लांट को बैठा रहे हैं शहरी क्षेत्र में, तो आपका लैंड का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लैंड कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इस पर लैंड को आप लोन पे खरीदिएगा। तीसरा क्या कहता है, प्लांट, मतलब आपका एक प्लांट ना यूज करके फिर सेकंड प्लांट को हम बैठा रहे हैं, तो आपको एक ही प्लांट को हम बैठाएं, हाई टेक्नोलॉजी वाला प्लांट को बैठाएं, जिससे कि हमको हमको क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मिले और कम कॉस्टिंग भी आए। ठीक है, इक्विपमेंट उसमें जो लगाएं वो मतलब अच्छा इक्विपमेंट लगाएं, जो ऐसा नहीं हो कि हमको कंटिन्यूस प्लांट को मेंटेनेंस में डालना पड़े। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है, फिनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल का हम सही यूज करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर बैंक हमको 20-50 हज़ार करोड़ का लोन दे दिया तो हम कहीं भी पैसा को लगा दें, जिससे कि क्या हो कि फिर बोरोविंग आ जाएगा, फिर हम लोग दिवालिया में चले जाएं, ऐसा नहीं हो। फिर अगर हमारे पास कुछ कैश है तो कैश का भी हम लोग को मतलब बिजनेस में अच्छा से यूज करना पड़ेगा। लोन्स है, लोन्स को भी हम लोग टाइमली रिपेमेंट करना पड़ेगा और उस पैसा को हम लोग प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। बिजनेस का उद्देश्य रिसोर्स जो भी हमारे पास रिसोर्स है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स है चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसका सही उपयोग करना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। अगर आप रिसोर्सेज का, फिजिकल रिसोर्सेज का और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सही यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इफिशिएंट होगा, मतलब बेहतर होगा, स्मूथ होगा, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब कहीं दिक्कत कोई चीज में नहीं होगा फंक्शन करने में। और तीसरा होगा लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अगला हम पॉइंट देखते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द objective of the business is to earn profit on the capital employed. On capital employed, profitability refers to the profit in relation to capital investment. Every business must earn to reasonable profit which is to be important for the survival of the growth। मतलब क्या बोला जाता है कि प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए मुख्य उद्देश्य होता है। प्रॉफिटेबिलिटी का अर्थ होता है पूंजी पर उचित लाभ अर्जित करना। प्रॉफिटेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए हैं कोई बिजनेस चलाने में, बिजनेस लगाने में, ठीक है ना, तो उससे क्या हो, हमको प्रॉपरली लाभ मिले। ठीक है, एक उचित लाभ मिले। जैसे बैंक में 6% 7% इंटरेस्ट मिलता है आपका नॉर्मल सेविंग पे, तो अगर कोई इंटरप्रेन्योर अपना पैसा लगाए तो 10% 12% उस पर रीजनेबल कमाए। ठीक है ना, हर बिज हर बिजनेस का इतना लाभ कमाना चाहिए कि बिजनेस का सर्वाइवल कर सके और फ्यूचर में ग्रोथ कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में आप पैसा को ऐसे ही छोड़ देंगे तो 7% 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आपको बिजनेस से आप 3% 4% कमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका पैसा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो फिर फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा इतना जरूर कमाना चाहिए कि जिससे क्या हो, बिजनेस सर्वाइवल करे और फ्यूचर ग्रोथ करे। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है, मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। Business enterprises need manager to conduct and coordinate business activities. Various program for motivating manager need to be implemented. Manager performance and development therefore is an important objective of enterprises.
एक्टिव एक्टिवली वर्क फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि मैनेजर बिजनेस को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन का काम करना पड़ता है। बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है कि मैनेजर की इफिशियंसी बढ़ाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो मैनेजर है उसको आप रोज आके डांट रहे हैं, उसको आप मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। लीडरशिप इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई चीज़ का उसको स्किल, हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी आया तो उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपका क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग मिलेगा। मतलब अगर आप उस पे भरोसा करेंगे तो क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग देगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा और क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग होगा। मतलब एक मैनेजर को क्या होता है कि मैनेजर क्या होता है, बिजनेस को चलाने और कोऑर्डिनेशन करने के लिए काम करता है। मतलब कैसे बिजनेस चलेगा, आप क्या होता है कि डे टू डे का एक्टिविटीज में आप जब काम करेंगे तो क्या होता है कि कंपनी का जो मालिक होता है वो ऑपरेशन में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीच में एक मैनेजर को रखा जाता है। क्यों मालिक मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर वर्कर को बोलेगा, ठीक है। और तो क्या होता है कि बीच में एक जो मैनेजर को रखा जाता है, उस इसी मैनेजर का मतलब होता है टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है ना। कैसे उसको मैनेज करना है, उसको मालिक को भी मैनेज करना है और वर्कर को भी मैनेज करना है। तो आपको क्या करना है, जो मैनेजर है बिजनेस चलाने के लिए क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मैनेजर की इफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार हाँ गलत काम करे उसको डांट भी लगाना है, लेकिन उसको बीच बीच में प्रोत्साहन करना पड़ेगा। लीडरशिप इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर वो कोई तरह का हो सकता है कि आपका पैसा लगा हुआ है तो आपका सोचने का एंगल अलग होगा, लेकिन मैनेजर का सोचने का एंगल अलग होगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं तुम उसको इस ढंग पे सोचो, तो उसमें क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब डिसीजन लेने का तो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, हो सकता है कि कोई चीज़ का ट्रेनिंग आया, नया टेक्नोलॉजी आया तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको मैनेजर को। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा मिलेगा। बार बार आपको एक ही चीज, अगर ये सब चीज आप डेवलप कर लिए मैनेजर के हाथ में, तो आपको डे टू डे ऑपरेशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग मिलेगा, इफिशियंट मैनेजमेंट मिलेगा। मैनेजर क्या होता है कि इफिशियंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको आप मैनेजर को कम बोलेंगे, वो ज़्यादा काम करके आपको देगा। और क्या होगा कि ऑर्गेनाइज़ वर्किंग सिस्टम मिलेगा। मतलब आपको बार-बार उसमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आपको सारा का सारा सिस्टम सिस्टमैटिक मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग social problem or work in a social desirable manner. Thus, the business enterprises must have multiple objectives to satisfy different individual and group. This is essential for their own survivals and प्रोस्पेरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस क्या होता है कि समाज का एक हिस्सा होता है। जैसे अभी आप सुन बहुत जगह सुने होंगे कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर इसलिए लाया गया, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप समाज में रह के बिजनेस कर रहे हैं तो हर बिजनेसमैन का एक उद्देश्य होता है कि हम भी समाज को कुछ दें। जैसे बीच बीच में वो लोग क्या करते हैं, एनजीओ के थ्रू बहुत सारा सामान का डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, स्कूल स्कूल को चलाता है, बहुत जगह हॉस्पिटल चलाता है, तो ब्लड डोनेशन का कैंप चलाता है। ये सब क्या होता है कि मतलब सीएसआर एक्टिविटीज की तरह चलाता है। लेकिन क्या होता है कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक बिजनेसमैन का, बिजनेस क्या है, समाज का हिस्सा है। इसलिए क्या होता है, बिजनेस की जिम्मेवारियां है कि वह समाज का क्या करे, कल्याण करे। कैसे कल्याण करेगा, ठीक है। एक मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स दे, मतलब अगर आप पैसा ले रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं दे, ठीक है। फेयर प्राइस रखे, उचित मूल्य रखे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोजगार प्रदान करे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रदूषण को कम करे, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्राहकों को हितों की रक्षा करे। मतलब अगर ऐसा है कि जब हर बिजनेस का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीधा है कि उसको क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना है कि आप जैसे एग्जाम्पल टाटा का क्या क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल एक समझेंगे तो ज़्यादा वो बेटर क्लियर है। उसका कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसका क्वालिटी है अच्छा होता है, प्राइस भी रीजनेबल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब कंपनी टाटा बनाई उसमें कई बहुत सारा लोग क्या करता है, रोजगार करता है। जब आपके आसपास में कोई फैक्ट्री खोलेगा, बहुत सारा लोग क्या करेगा, उसमें काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, वो लोग क्या करता है, बहुत सारा पेड़ पौधा को लगाता है कि जिससे क्या होता है कि प्रदूषण को कम हो। बड़ा बड़ा फैक्ट्री जब चलता है तो उसमें क्या होता है कि पोल्यूशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, हर साल लेना पड़ता है। हाँ,
कि आपको आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगाते हैं, उनको दिखाना पड़ता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उससे क्या होता है कि हमारा मतलब ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी डाला गया है कि आपको मतलब इन्वायरमेंट को आप तो दूषित कर रहे हैं, तो आपको उसको उतना पेड़ पौधा लगा के आप उसको शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है ना? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब ग्राहकों को हितों की रक्षा करना पड़ता है। ये सब चीज़ आपको इतना डिटेल में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, तो हमको पता है ये सब चीज़ें, हम इंडस्ट्री में डे टू डे देख रहे हैं। बट आपको टीचर्स मैम लोग नहीं बता पाएँगे, क्योंकि उन लोग को पता है कि लोग जो बुक में जितना लाइन लिखा हुआ है, उतना ही ज्ञान देगी। उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो ये सब चीज़ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी आपको हम कुछ-कुछ चीज़ को बता देते हैं, ठीक है? आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ है, ठीक है? तो सारा का सारा चीज़ को आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बिजनेस का रिस्क। हम लोग ऑब्जेक्टिव समझ गए, अब हो सकता है कि बिजनेस में तो रिस्क भी है। क्या क्या रिस्क है, अब हम लोग रिस्क फैक्टर को समझते हैं, ठीक है ना? बिजनेस में क्या क्या द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट बोलता है कि मे बी डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और ड्यू टू द इंक्रीज इन competition from other product. Lower demand result in a long sales and profit. In other situations, the shortage of the raw material in the market may shoot up the price. The firm using these raw material will have to pay more for the for buying them. As the result, cost of production may increases, which turns may reduce profits. Business enterprises cons- constantly face two type of risks: speculative risks and pure risks. Speculative risks speculative risks involve both the possible of gain as well as possible of loss. Speculative risk arises due to change in market condition, including fluctuations in the demand and supply, change in the price, or the change in the fashions and the taste of customer. Favorable market Favorable market conditions are likely to result in gain, whereas unfavorable one may resulting in the loss. Pure risks involve only the possible of the losses or no loss. The change and the chance of fire, theft, strike are the example of the pure risks. Therefore, occurrence may result in the losses, whereas non-occurrence may explain ऑब्सेंस ऑफ द लॉसेस इंस्टेंट ऑफ द गेन, ठीक है? तो हम लोग समझते हैं बिजनेस लॉस क्या होता है, ठीक है? बिजनेस लॉस को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बिजनेस लॉस को नहीं, रिस्क समझते हैं। बिजनेस का रिस्क क्या होता है? कोई भी बिजनेस को करने के लिए हम लोग को क्या होता है, रिस्क का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्यवसाय का जोखिम, ठीक है? व्यवसाय का जोखिम। बिजनेस रिस्क का अर्थ क्या होता है? व्यापार में लाभ कम होना या हानि होने की संभावना। मतलब सीधा वाली बात है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्यापार में लाभ कम होना या तो हानि होने की संभावना। व्यापार में भविष्य हमेशा निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना? भविष्य निश्चित नहीं होता है, इसलिए कई बार अचानक होने वाली घटनाओं के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु का मांग मतलब उसका डिमांड क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है? जैसे एक बार आप कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में सुने होंगे, अ, नहीं, बीच में क्या होता है, मैगी में आया था कि यहाँ कुछ प्रोडक्ट में मिक्स आ गया था, जिससे क्या होता कि मैगी का डिमांड पूरा का पूरा गिर गया था, ठीक है? ग्राहकों का पसंद बदल जाना, ठीक है ना? आज आज के डेट में आप कोई वैरायटी का कोई टेस्ट प्रेफ़रेंस कर रहे हैं, अगला कुछ दिन के बाद आप दूसरा टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस करेंगे, मतलब अगर ग्राहकों का टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस भी चेंज हो जाएगा, उससे भी आता है। प्रतियोगिता बढ़ जाने के कारण मतलब क्या होता है कि आज के डेट में क्या हुआ, एक आदमी मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, लेकिन कल के डेट में कुछ दिन के बाद क्या होता है 20 कंपनी बेचेगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी वो भी एक बिज़नेस का रिस्क है कि हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा, ठीक है ना?
कच्चे माल का कीमत बढ़ जाना, मतलब जिस जिस चीज़ से आपका प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का क्या रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपका बिजनेस का रिस्क हो जाएगा कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है कि कंज्यूमर उस पर इतना एफर्ट ना कर पाए। इन परिस्थितियों में क्या होता है, इन इन परिस्थितियों से क्या होता है कि बिक्री और लाभ को प्रभावित करता है, इसलिए हर व्यवसाय के लिए मतलब जोखिम पाया जाता है, ठीक है ना। जोखिम का सीधा मतलब होता है कि व्यापार का लाभ को कम करना या हानि होने की संभावना होता है। उसका होने का कारण क्या हो सकता है कि आपका किसी वस्तुओं का डिमांड कम हो जाना, ग्राहक का उसके प्रति पसंद को छोड़ देना, ठीक है। जैसे आपने कीपैड को छोड़ दिया, स्मार्टफोन में आ गए, ठीक है। किसी वस्तुओं की मांग कम कैसे हो गया, कीपैड से आप एंड्रॉयड में आ गए। ग्राहकों का पसंद क्या हो गया, कीपैड से एंड्रॉयड में आ गया। प्रतियोगिता बढ़ गया, एप्पल आ गया, सैमसंग आ गया, वीवो आ गया, कई कंपनियां आ गया, ठीक है। इन परिस्थितियों में क्या होती है कि अब किसी वस्तुओं का रॉ मटेरियल बढ़ गया, बीच में अभी देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पे क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ गया, जिसके कारण से क्या होगा कि कई मटेरियल का, अभी आज के डेट में देख रहे होंगे कि आपका मोबाइल का प्राइस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस का रिस्क हो जाता है। इसमें दो तरह का रिस्क होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि जो लाभ और हानि दोनों होने की संभावना होती है, जैसे बाजार की कीमतों का बढ़ना। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में क्या होता है कि केवल और केवल क्या होगा, आपको हानि ही हानि होगा, ठीक है ना। इसमें प्रॉफिट होने की संभावना नहीं होगी। अगर आपका एग्जाम में पूछते हैं कि कौन कौन सा रिस्क में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क में दोनों हो सकता है। और कौन सा रिस्क में दोनों नहीं हो सकता है, तो केवल प्योर रिस्क में आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हानि होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बिजनेस रिस्क को हम लोग अंडरस्टैंडिंग किए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या क्या प्रकार है, ठीक है ना। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बोलता है कि कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ दियर peculiar characters. Business risk arises due to uncertainty. Uncertainty refers to the lack of the knowledge about what is going to happen in a future. Natural calamities, change in the demand of and the prices, change in the government policy and the price, improve in technology, etc. are some example of the uncertainty which create risks of business causes and outcome of these future even known are not known, ठीक है। मतलब क्या होता है कि व्यवसाय जोखिम अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। मतलब क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब व्यवसाय में जो जोखिम होता है वो अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। बिजनेस रिस्क का मुख्य कारण भविष्य की अनिश्चितता होती है। भविष्य में क्या होगा इसका सही अनुमान लगाना कठिन होता है। प्राकृतिक आपदाएं, कल के डेट में भूकंप भूकंप आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए, ठीक है। सरकार की नीति में परिवर्तन हो सकता है, जैसे सरकार तुरंत नोटबंदी कर दिया था, सरकार तुरंत क्या किया, जीएसटी ला दिया था। नई नीति में परिवर्तन, मांग और कीमतों में बदलाव हो सकता है कि कोई वस्तु वस्तु का डिमांड की कीमतों में बदलाव हो जाता है, कीपैड से एंड्रॉयड में आ गए। नई टेक्नोलॉजी में आना, कीपैड से एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आ जाना, नया टेक्नोलॉजी में आना आदि व्यापार क्या होता है कि अनिश्चितता को पैदा करता है। इसलिए क्योंकि इन घटनाओं के परिणाम पहले से ज्ञात नहीं होता है, इसलिए व्यवसाय में जोखिम होता है। हो सकता है कि कोई पुराना कीपैड मोबाइल को रखा हुआ है, लेकिन स्मार्टफोन आ गया, मार्केट तुरंत अडॉप्ट कर लिया, उससे क्या हो, कीपैड फोन का स्टॉक बन गया, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज some risks. No business can avoid risks, although the amount of the risk may be vary from business to businesses. Risk can be minimized but cannot be eliminated, ठीक है ना। क्या होता है कि जोखिम क्या होता है कि प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक भाग होता है। जिस तरह आपका मतलब ये बोल सकते हैं एक बॉडी का पार्ट है हम हाथ, उसी तरह रिस्क क्या होता है कि बिजनेस का एक पार्ट है, ठीक है ना। हर व्यवसाय में किसी ना किसी प्रकार का जोखिम अवश्य होता है। कोई भी व्यवसाय जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता है। छोटे व्यवसाय में जोखिम कम होता है और बड़े व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, लेकिन जोखिम को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। व्यवसायी केवल जोखिम को कम करने का प्रयास
कर सकता है। मतलब वो जैसे मान लीजिए कि अब मतलब आग लग जाए, आग लग जाने के क्या कारण क्या कर सकता है, वो आग बुझाने वाला यंत्र रख सकता है। कहीं पे क्या बोल सकते हैं कि जल जमाव हो सकता है, जल जमाव होने के कारण उससे क्या कर सकता है कि नाला बना सकता है। तो ये अपना कम कर सकता है, लेकिन ये इस चीज को पूरा का पूरा इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेसेस, ठीक है ना। Nature of the businesses, that is the type of the goods and services produced and the sold, and the size of the businesses, that is the volume of the productions and the sales, are the main factor which determine the amount of the risks in the businesses. For example, the business dealing in fashionable item has a high degree of the risk. Similar a large scale of the business generally has a higher risk देन व्हाट ए स्मॉल स्केल हैज। मतलब इसका मतलब क्या समझे, जोखिम का मात्रा व्यवसाय की प्राकृतिक और आकार पर निर्भर करता है। आप कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, उसके आधार पे भी आपका मतलब रिस्क निर्भर करता है। व्यवसाय में जोखिम का मात्रा केवल उसके प्रकार और आकार पर निर्भर करती है। जिस व्यापार की मांग तेजी से बदलती रहती है, वहां पे जोखिम क्या होता है, अधिक होता है। उदाहरण के लिए फैशन से संबंधित वस्तुएं, मतलब अब तक देख रहे होंगे फैशन की दुनिया में आज ये आज आज मतलब उदाहरण के लिए आज ये शर्ट चल रहा है, आज वो मतलब कपड़ा चल रहा है, कल के डेट में हो जाता है 6 महीने के बाद दूसरा कपड़ा चल रहा है। उसमें क्या हो सकता है कि आपका कंटिन्यूस चेंजिंग हो रहा है। तो फैशन क्या होता हो सकता है, फैशन में से संबंधित वस्तुओं व्यापार में जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्राहकों का पसंद जल्दी से जल्दी बदलते रहता है। जैसे शॉर्ट्स आ गया मार्केट में, तुरंत-तुरंत क्या होता है, एक-एक सेकंड में आप स्क्रॉल करके शॉर्ट्स को चेंज करते हैं। वो क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को। उसी तरह क्या होता है कि अगर फैशन वाला बिज़नेस वो करता है, तो मतलब कपड़ा का बिज़नेस कर रहा है, क्रीम का बिज़नेस कर रहा है, मतलब जो फैशनेबल वाला चीज़ आइटम है, तो उसमें क्या हो सकता है, डिज़ाइन चेंजिंग होता है, मॉडलिंग चेंज होता है। उससे क्या होता है कि ग्राहक पसंद करता है, पुराना चीज़ को हटा देता है। मोबाइल का कवर ही देख लीजिए आप एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है ना? इस प्रकार के बड़े पैमाने का जो बिजनेस होता है उस पर बड़ा रिस्क होता है, छोटे पैमाने की तुलना में कम रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि निवेशक और उत्पादक दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट, बोलता है कि इसे रिवार्ड ऑफ द रिस्क टेकिंग, बोलता है कि नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्विंग, बोलता है कि इन्हें बिजनेस, बोलता है कि हायर द चांस ऑफ द प्रॉफिट एंड इंटरप्रेन्योर अंडरटेकिंग द रिस्क अंडर द अनएक्सपेक्टेड ऑफ द हायर प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ द रिस्क। बोला क्या जाता है कि क्या बोला जाता है कि जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है कि लाभ होता है। व्यापार में नो रिस्क नो गेन का सिद्धांत लागू होता है। जितना अधिक जोखिम होगा उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ होने का क्या होता है कि चांस रहता है। अगर कोई उद्यमी अधिक लाभ का आशा करता है तो जोखिम उठाना पड़ता है, इसलिए लाभ को जोखिम जोखिम उठाने का एक पुरस्कार माना जाता है। बोलता है कि नो रिस्क नो गेन, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत बार सुने होंगे आप, यहाँ पे पढ़ भी लिए। आप चलते हैं कि काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना। बिजनेस रिस्क का क्या क्या कारण है, अभी तक हम लोग समझते थे नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क, समझे बिजनेस क्या क्या नेचर है। आप समझते हैं बिजनेस का क्या मतलब, किस व्यवसायिक जोखिम का कारण, काउज ऑफ बिजनेस रिस्क, किस कारण से व्यवसाय में रिस्क होता है, ठीक है ना। बिजनेस रिस्क एराइजेज, बोलता है कि ड्यू टू द वेरियस causes which are classified as follow: natural causes, human beings, बोलता है कि have a little control over the natural calamity like flood, earthquake, lightning, lightning, heavy rains and famine etc, and property बोलता है and the income of a businesses, ठीक है। क्या बोलता है कि मनुष्य क्या बोलता है कि मानवीय कारण क्या है। ह्यूमन बोलता है कि पहला क्या हम लोग का देखे थे, नेचुरल कारण, प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारण पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। यह बाढ़, भूकंप, बिजली गिरना, भारी वर्षा होना, सूखा होना, अकाल होना जैसा क्या क्या प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और उस पर क्या होता है कि आपदा, ये क्या होता है प्राकृतिक है। इसमें क्या हो सकता है कि व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। इससे क्या होता है कि संपत्ति और माल माल दोनों को हानि हो सकता है, जिससे क्या होता है व्यापार में जोखिम, रिस्क बढ़ जाता है। सिंपल बात है कि नेचुरल काउज का मतलब जिसमें आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है।
Human cows. Human बोलता है cows include such unexpected event like dishonesty, uh, carelessness, or negligence of the employee, stoppage of the work due to the power failure, strike राइट्स, मैनेजमेंट इफिशिएंसी। बोलता है कि मनुष्य की गलतियों या लापरवाह मतलब मानव के कारण जो लॉस होता है, ठीक है ना? मनुष्य की गलतियां या लापरवाह बोलता के कारण जो जोखिम उत्पन्न होता है, कर्मचारी की बेईमानी मतलब कोई कर्मचारी डिसऑनेस्ट निकल गया, लापरवाह है, ठीक है ना? कार्य में भी रुकावट दे सकता है, हड़ताल हो सकता है, दंगा हो सकता है। मतलब आप देख फैक्ट्री के सामने आप अक्सर ये सब देखते होंगे कि हड़ताल कर देता है लेबर यूनियन वाला, ठीक है? तथा प्रबंधक की अक्षमता आदि व्यापार को प्रभावित करता है और ये घटना क्या करता है उत्पाद और लाभ दोनों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना? मतलब अगर आपके पास इफिशिएंट ये सब मिल जाएगा, इससे भी आपका लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक काउज बोलता है कि दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग बोलता है कि टू द डिमांड ऑफ द गुड्स, कंपेटिटिव प्राइस, कलेक्शन ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द customers, change in technology or the method of the production. It is a financial problem of the like to arises in the interest rates of the borrowing, levy बोलता है कि highly taxes etc and also under बोलता है कि under this type of the causes as they resulting in the high unexpected cost of operation or the businesses, ठीक है ना? इसमें क्या देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक काउज में क्या होता है कि एक आर्थिक मतलब आर्थिक कारण क्या होता है आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन परिवर्तन भी व्यापार बोलता है कि जोखिम का एक कारण बनता है। वस्तुओं का क्या होता है डिमांड में मांग में कमी हो जाना था, प्रतियोगिता बढ़ जाना, ठीक है? ग्राहकों द्वारा भुगतान ना करना मतलब अगर ग्राहक सामान ले लिया आपको पेमेंट नहीं किया, उत्पाद की तकनीकी में बदलाव हो गया, सामान जो बनाने का जो तरीका है उसमें बदलाव हो गया, ब्याज की दरों में वृद्धि हो गया, करों के दर में वृद्धि हो गया मतलब अभी आप 5% ले रहे थे 6% हो गया, इससे क्या हो सकता है कि वो भी आपका रिस्क है। टैक्स का रेट 5% जीएसटी था, आप 18% लग रहा है, उसमें भी इसमें भी आपका क्या होता है कि लॉस होता है और इससे क्या होता है व्यापार की लागत बढ़ जाती है और क्या होता है कि लाभ कम होने की चांस रहता है, ठीक है ना? और एक होता है कि अदर काउजेज बोला कि दीज आर द अनफोर्सियन इवेंट लाइक द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है? मैकेनिकल फेल्योर सच एज ब्रस्टिंग ऑफ द ब्लास्टिंग ऑफ द बॉयलर, fluctuations of the exchange rate which has lead to possible of the business risks। बोलता है कि कुछ अन्य और कारण होता है, कुछ अन्य कारण क्या होता है कि वो अप्रदर्शित घटनाएं भी व्यापार को जोखिम में पैदा कर सकती है, जैसे राजनीतिक अशांति। जैसे अब हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ठीक है? गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट कोई किसी और को सपोर्ट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट किसी और को सपोर्ट कर रहा है, इससे भी क्या हो सकता है बिजनेस पे इफेक्ट आता है, ठीक है ना? बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो आप सोचेंगे सर हम पे क्या होता है, आप एक छोटा दुकान किए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे अभी अभी बीजेपी क्या कर रहा है अंबानी और रिलायंस को प्रमोट कर रहा है, जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं। अभी राहुल गांधी जैसे अभी गवर्नमेंट में आ जाएगा तो क्या होगा कि अदानी और अंबानी को थोड़ा सा बिजनेस में क्या हो सकता है डिफिकल्टी आ सकता है, तो जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? तो राजनीतिक अस्थिरता भी उससे करता है कि मशीन को खराब हो जाना, एकाएक आपका मशीन खराब हो गया, बॉयलर फट गया जिससे बॉयलर फट जाता है एकाएक मतलब उसमें आप ये सब क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड घटना है, ठीक है? हो सकता है कि आपका अभी क्या हो सकता है अभी अभी देख रहे हैं आपका डॉलर का प्राइस क्या होता है कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो डॉलर प्राइस बढ़ रहा है तो उससे भी क्या हो सकता है आज के डेट में आप कोई सामान खरीदें 50 रुपया में, हो सकता है उसका आपका एक्सचेंज रेट 70 रुपया देना पड़ जाए, तो इससे इसका मतलब है ना, इससे भी क्या होता है कि कॉस्टिंग बढ़ जाता है और उसमें भी हानि होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है? और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस बेसिक्स फैक्टर्स, ठीक है? व्यवसाय प्रारंभ करना के मूलभूत तत्व क्या क्या है, ठीक है? ये आपका लास्ट लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस सिमिलर बोलता है कि टू द एनी अदर ह्यूमन एफर्ट बोलता है इन विच resources are employed बोलता है कि to achieve certain objective successfully result in a business depends large upon the ability of entrepreneurship or the started of a new businesses to anticipate problem and solving them with a minimized cost. This is especially true or modern businesses world where competed where the competitions is a very tough and risks are high. Some of the problem which businesses
counter are the basic nature. For example, to start a factory plant must be made about the locations of the businesses and the possible number of the customer, that kinds of the equipment require and amount of the money needed to procure them, the shop's layout, purchasing and financing needs, and hiring of the workers for its efficient and implementations. These problems became more complex in a big businesses. However, some of these basics factors which must be considered by anybody who is started a businesses बोलता कि are as follows: selections of the line businesses. The first lines is to be decided by the entrepreneur will in the nature and the type of the businesses be undertake. He or she will obviously likely to obviously like to enter that the branch industry and the commerce which has possible of great amount of profit. The decisions will be influenced by the customers requirement and the market, and also the kinds of technology and interest of entrepreneurs has a producing of particular product. Number two, the size of the firm. Size of the firms and scales of the operations is another important decision to to be taken at the start of the businesses. Some factors favorable at a large size, whereas others tend to restrict the scales of the operations. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over times, and he or she can arrange the necessary capital for businesses, he will started operations at a large scales. If the market condition is uncertain and the risks are high, or a small size of the businesses would be better choice of the ownerships. With respect to the ownerships, the business organizations may be taken take the form of a sole proprietorship, partnership, joint stocks company. Each form has its own merits and demerits. The choose of the suitable forms of the ownerships will depend on the such factors as line of the business capital require liabilities of ownerships divided in the profit, legal formalities, continuous and business transferability to to interest and assume. Number four, में आता है location of the business enterprises. An important factor to be considered at start the business is to the place where enterprises will be located. Any mistake in any regard can result in a high cost of the production innovations in getting risks rise right kinds of the productions input and serving the customer in a best possible way, available of the raw materials and the labor power supplying and the servicing like banking, transportation, communication, warehousing, etc are important factor while making a choice of the location. Finance and proportions. Finance is a concerned with providing the necessary capital or starting as well as for continuing the proposed business. Capital is required for investing in fixed assets like the land, building, machines, and equipment and it's the current assets like the raw material, books, debts, stock of the finished goods. It is etc capital is also required for meeting day-to-day expenses. A proper financial planning must be done to determine the requirements of the capital from the source from where capital will be raised, the best way to utilize the capital in a firm. Physical factors. Physical factors available of the physical factors include machines and equipment, building and supportive services is an important factor to be considered at the starting of the businesses. The decision relating to this factor will depend on nature, the size of the business, availability of the funds, and the process of the
plant layout. One of the requirement of the physical facility has been determined. The entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of this facility. Layout means physical arrangement of the machines equipment need to manufacture of the product. Number 8 में आता है competent and committed workforce. Every enterprises need to competent and committed workforce to perform various activities so that the physical and the financial resources are the convert into a desired output. Since no individual enterprises can do everything himself, he or she must identify the requirement of the skilled and unskilled worker and manage staff. Plans should also be made about how the employee will be trained and motivated to given their best performance. Tax planning has become necessary these days because there are number of the taxes law in a country बोलता है कि and they influences most every aspect of the fluctuation in a modern businesses. The founder of the businesses has to consider in a advance and the tax liabilities under the various tax law in the impact of the business decisions. Launching the enterprises after the decision relating बोलता है कि to the above mentioned factor every every factor have been taken and the entrepreneur can be ahead to actual launching of the enterprises which could take in mobilizing the various resources, fulfilling the necessary legal formality, starting the production process and initiating the sales promotions. ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग स्टडी कर लिए। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द बेसिक्स मतलब व्यवसाय को प्रारंभ करने का मूलभूत क्या क्या तत्व होता है कि बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस शुरू करना आसान कार्य नहीं होता। किसी भी व्यवसाय की जो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितना सही योजना सोचा है ना? कि सही योजना और सोच के साथ शुरू किया है। आधुनिक व्यापार दुनिया का प्रतिस्पर्धा मतलब जो कॉम्पिटिशन और जोखिम बहुत अधिक होता है, इसलिए नए-नए व्यवसाय की शुरू करने से पहले आपको क्या होता है व्यवसायी को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। य यदि उचित योजना ना बनाई जाए तो व्यवसाय में हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोग का जो फैक्टर टू बी कंसीडर व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस में जो पहला क्या होता है उसका मतलब क्या होता है कि व्यवसाय प्रारंभ करते समय हम लोग जब व्यवसाय स्टार्टिंग करेंगे तो कौन-कौन सा बात को ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द बिजनेस व्यवसाय के प्रकार का चयन। व्यवसाय शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह होता है कि किस प्रकार का व्यवसाय किया जाए। यह निर्णय व्यवसाय की रुचि, उसका अनुभव, तकनीकी ज्ञान, बाजार की मांग पर उपलब्ध संसाधनों मांग पर उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ऐसे व्यवसाय चुनना चाहिए जिससे भविष्य में मांग बनी रहे और उसमें क्या होता है कि लाभ की संभावना अधिक हो, है ना? उस लाभ की संभावना अधिक हो। सही व्यवसाय का चयन सफलता का पहला सीढ़ी माना जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप सही बिजनेस का सिलेक्शन कीजिए। सेकंड क्या होता है कि साइज ऑफ द फर्म व्यवसाय किस प्रकार शुरू किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। व्यवसाय छोटा, माध्यम या बड़ा स्तर पर शुरू किया जा सकता है। फर्म का आकार में पूंजी हो सकता है। बाजार की स्थिति के आधार पे मांग, जोखिम उठाने की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। यदि मांग निश्चित और भविष्य सुनिश्चित है, ठीक है, सुरक्षित है, तो व्यवसाय बड़े स्तर पर शुरू किया जा सकता है, अन्यथा छोटे स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप स्वामित्व का क्या आकार होगा, व्यवसाय का स्वामित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय भी आवश्यक होता है। व्यवसाय अकेले हम करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे या तो फिर संयुक्त करेंगे, ठीक है? मतलब जिसे लिस्टिंग करके करेंगे। सहकारी संस्था, कंपनी के रूप में शुरू किया जा सकता है। यह निर्णय पूंजी की आवश्यकता, जोखिम नियंत्रण, लाभ का विवरण, कानूनी औपचारिक को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है।
लिया जाता है। उचित उचित स्वामित्व व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय का स्थान। व्यवसाय के लिए यह भी सही है, यह सही स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां कच्चा माल, परिवहन, बिजली और श्रमिक और बाजार की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो। गलत स्थान पर व्यवसाय स्थापित करने से कॉस्टिंग मतलब लागत बढ़ जाएगा और लाभ कम हो सकता है। इसलिए व्यवसाय की प्राकृतिक के अनुसार जहां उसका रॉ मटेरियल संसाधन सारा है वहीं पे करना चाहिए। नंबर 5 में आता है फिनांसिंग ऑफ पोजीशंस, वित्तीय व्यवस्था का कारण। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने और चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। भूमि, भवन, मशीन, कच्चा माल, कर्मचारी के वेतन आदि के लिए धन चाहिए। इसलिए व्यवसाय को पहले यह तय करना पड़ता है कि पूंजी कहाँ से प्राप्त करेंगे। पूंजी का पूंजी स्वयं स्वयं की बचत, बैंक ऋण, स्वयं आप सेविंग के लगाएंगे कि बैंक से लोन लेंगे कि क्या कोई अन्य और स्रोत से प्राप्त करेंगे। पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था प्राप्त करना, ठीक है। तीसरा होता है फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधा। व्यवसाय के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसमें मशीन, भवन, फर्नीचर, बिजली, पानी आदि अन्य उपकरण सम्मिलित होते हैं और अच्छी गुणवत्ता की सुविधा उपलब्ध कराने का क्षमता बढ़ता है। इससे क्या हो सकता है कि कार्य सुचारू बनती है और व्यवसाय शुरू करने से पहले इन संसाधनों का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना पड़ता है। प्लांट लेआउट, प्लांट का प्लांट कैसे बनेगा उसका विन्यासन, ठीक है ना। प्लांट लेआउट का अर्थ होता है मशीन, उपकरण और विभागों में उचित कार्य में व्यवस्थित करना। सही लेआउट से समय और लागत, श्रम मतलब मजदूरी सब बचता है, सही है। तथा उत्पाद का कार्य सरलता और तेजी से हो जाता है। और खराब लेआउट से उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए उत्पादन की कई योजनाओं का वैज्ञानिक तकनीकी से बनाया जाता है। लेआउट का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कहीं प्लांट बनाना है तो प्लांट ऐसा हमको लेआउट सेट करें कि जल्दी प्लांट बन जाए। ऐसा नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब लेआउट बना दिए जिससे कि हमको बन ही नहीं पा रहा है। कंपिटेटिंग एंड कमिटेड वर्क, कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क, ठीक है। योग्य और समर्पित वर्कर, ठीक है। व्यवसाय की सफलता काफी हद तक कर्मचारियों की योग्यता और मेहनत पर निर्भर करता है। कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी क्या उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसलिए क्या होता है व्यवसाय को योग्य, ईमानदार और समर्पित कर्मचारी की नियुक्ति करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मचारी से व्यवसाय की कार्यक्षमता और लाभ दोनों बढ़ती है। टैक्स प्लानिंग क्या हो सकता है, व्यवसाय शुरू करने से पहले करों से संबंधित नियमों और दायित्वों को समझना पड़ता है। उचित टैक्स प्लानिंग की व्यवस्था कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है। अतिरिक्त कर भार भी क्या होता है कि अतिरिक्त कर भार को कम किया जा सकता है। सरकार नियमों का पालन करना पड़ता है और प्रत्येक व्यवसाय के लिए जिम्मा और अभी बहुत तरह का टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम टैक्स है, एक्साइज है, ये सब अभी भी लागू है, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस का शुभारंभ, सभी व्यावसायिक तैयारी पूरी होने के बाद व्यवसाय को औपचारिक रूप से शुरू किया जाता है। इससे क्या होता है इससे क्या होता है उत्पादन प्रारंभ करना, प्रचार करना, ग्राहकों तथा वस्तुओं सेवाओं तक पहुंचाना, ठीक है। सफल लॉन्चिंग के लिए प्रभावी प्रचार और अच्छी योजनाएं आवश्यकता होती है ताकि बाजार में व्यवसाय की पहचान बने रहे। मतलब जब भी आप कोई बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं, आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये सारा सारा का फैक्टर को आपको देखना पड़ेगा। इससे ना होगी कि आपको कोई गलत बिजनेस करें, जिस बिजनेस को आपको करने में मन ना हो, आप उस वैसा बिजनेस कर रहे हैं। आपका बिजनेस छोटा करने का मन हो, आप बड़ा कर रहे हैं, साइज ऑफ द फर्म, ठीक है। चॉइस ऑफ द ओनरशिप, आप अकेले कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। बिजनेस सही लोकेशन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आयरन और का अगर आप स्टील प्लांट बैठा रहे हैं तो आपको बड़बिल के आसपास में करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखना चाहिए तो अदर रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो तीसरा चीज होता है कि फिनांशियल की जो
जो सारा सुविधा होना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी होना चाहिए, प्लांट लेआउट, अगर प्लांट आप बना रहे हैं तो प्लांट का ऐसा लेआउट होना चाहिए जिससे कि आपको क्या हो, तुरंत का तुरंत आपको सारा सामान अवेलेबल मिल जाए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, या तो फिर नेक्स्ट सीरीज हम लोग क्वेश्चन आंसर का भी चलाएंगे, उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो आपका आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 को 5 क्लास में कंप्लीट किए। आप पाँचों क्लास सिक्वेंसली एक 1 बाय 1 देखें, उसमें क्या होता हो जाएगा, आपका सारा का सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर, अगर आप चाहते हैं कि क्लास का जो डिक्टेशन, जो हम डिक्टेट दिए वो भी आपको चाहिए, तो उसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है ना। आपको आपको कोई भी तरह का नोट्स चाहिए, किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, तो आपको प्रॉपर मिलेगा। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर शेयर कीजिए। आपको और कुछ मतलब लग रहा है कि इसमें और कुछ आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले, कोई टॉपिक छूटा हुआ है, तो हम आपको जैसे स्टार्टिंग में बताएं कि हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट यहाँ पे किए। तो आज के लिए चैप्टर 1 को हम लोग अलविदा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मुलाकात करेंगे चैप्टर 2 से, और साथ में हम लोग अकाउंट्स का भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको उस सीरीज भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला ही है। धन्यवाद।